Hello guys, the topic that we shall start today is your Phaeophyceae, which is a type of algae, right, which is a class of algae. So in the previous video we have completed the Chlorophyceae and the rest part of the algae, and so if you haven't watched that video, please do watch it first and then come to the Phaeophyceae, right? So without wasting any time, let's get started. It says that the member of Phaeophyceae are also known as brown algae, right? The other name for Phaeophyceae is brown algae. Why they are termed as brown algae, right? So when we talk about why they are termed as, why these classes of algae are termed as green algae, brown algae or red algae, so this is basically because of the pigments present to them, the dominance of the pigment that is present in them, right? जैसे कि हमने क्लोरोफाइसी में देखा था that it was chlorophyll A and chlorophyll B that was present in a higher amount, and which was leading to the green color of the algae, and hence they were termed as green algae. Similarly, in this case also, that is Phaeophyceae, we are going to see the pigments that causes it to appear brown in color, right? So let's read on further. So they are primarily found in marine habitats, means when we talk about their habitat, the place where they live, it is basically primarily the marine water, right? Then we talk about that they show great variation in size and forms, right? So when we talk about the Chlorophyceae, we had seen that they were unicellular also, we were having colonial also and filamentous also, so variety of forms were there. Similarly, in this case also, many forms are there. It may be a branched, it may be filamentous, variety of forms are there. But when we come to the size, in Phaeophyceae there are variety of size which is present. जैसे कि अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बात करते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं, ठीक है. So it says that simple branch, they range from simple branch filamentous form, that was your ectocarpus का example दिया है, that was simple branch and filamentous form, to profusely branched form as represented by kelps. मतलब जब हम बात करते हैं एक्टोकार्पस की तो उसका साइज भी कम होता है, also the form is simple branch and filamentous. But when we talk about the kelps, it is profusely branched form, and also they have a very tall height. That means they are of the height of 100 meters. They are 100 meters tall. Now when you compare it with the other animals of not animals, the plants of this class, you will find that we are having very small plants also, and the plants reaching to the height of 100 meters. So we are going to see a variety of heights, right? Variety of size present in Phaeophyceae, right? तो आगे बढ़ते हैं. This says that they possesses chlorophyll A and C. Chlorophyll A and chlorophyll C is present in Phaeophyceae. ठीक है. उसके बाद carotenoids present होते हैं. Carotenoids and xanthophylls are also present. Carotenoids and xanthophylls are the type of pigments, right? So they are also present in Phaeophyceae. जब हम बात करते हैं Phaeophyceae and Chlorophyceae की एक साथ, तो we know that in Chlorophyceae it was chlorophyll A and chlorophyll B. But when we talk about Phaeophyceae, it is chlorophyll A and chlorophyll C, right? So ये चीज़ याद रखना है. Also we have carotenoids and xanthophylls present in Phaeophyceae. They may vary in colors from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigments fucoxanthin present in them, right? So
when we talk about the color variation, so they are found of olive green color also. You might be knowing the olive green color, right? And they are also of they also are many types of various shades of browns. Means एक ब्राउन होता है हमारा सिंपल ब्राउन, राइट, सिंपल. अब आपको अगर मैं बोलूँ पिंक देखो, तो पिंक का भी आप बेबी पिंक भी ढूंढ सकते हो, डार्क पिंक भी बोल सकते हो, राइट. सो बहुत सारे शेड्स होते हैं. सिमिलरली जब हम बात करते हैं ब्राउन की, तो ब्राउन के भी बहुत डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं. इट में बी लाइट ब्राउन, इट में बी डार्क ब्राउन, ठीक है. ये तो नॉर्मल 2 कलर्स हो गए. और भी अगर इस पर डीप में जाएंगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे. तो वेराइटी ऑफ शेड्स ऑफ ब्राउन्स आर देयर. सो ऑलिव ग्रीन कलर की भी एल्गी हमें FeOFIC में मिलती है. एंड वी ऑल्सो हैव द light brown algae, the dark brown algae, and a different variety, different shades of brown are present, right? And this is dependent on the presence of xanthophyll pigment along with fucoxanthin, right? तो ये आप लोगों को ये जो ये पिगमेंट्स के नाम है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, राइट. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो इट सेज ओके, देन इट टॉक अबाउट द फूड दैट इज प्रेजेंट. तो फूड कौन सा प्रेजेंट है? द फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल. ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. देखो जितने भी पिगमेंट्स हैं, फूड स्टोर्ड है एंड द प्लेस वेयर द फाउंड, ये इम्पॉर्टेंट है. सो यू नीड टू रिमेंबर इट, राइट. सो जब हम बात करते हैं फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है. लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और फूड स्टोर क्या होता है हमारा? फूड कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर्ड होता है. तो ये याद रखना है. उसके बाद आगे बात करते हैं जब हम, तो ये बोलते हैं दैट द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन. अब एल्जिन भी जो सेल्यूलोसिक वॉल होती है, जो हम लोग सेल वॉल बोलते हैं ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो वो हो गई सेल्यूलोसिक वॉल, ठीक है. एंड दैट इज कवर्ड आउटसाइड, मतलब जैसे अगर हम बात करें, जस्ट वेट, ये मैंने बनाई आपकी सेल वॉल से, या सेल्यूलोसिक वॉल बना दी. मैंने क्या बना दिया? सेल्यूलोसिक वॉल, ठीक. जब हम बात करते हैं, अब हम जिलेटिनस के लिए पर्पल ले लेते हैं, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं जो आउटर साइड में, इसके आउटर लेयर में एक और कोटिंग होती है, सॉरी, सो इसके आउटर साइड में एक और कोटिंग प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज़ जिलेटिनस. एक जिलेटिनस कोटिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि बनी हुई होती है ऑफ एल्जिन की बनी हुई होती है वो जिलेटिनस कोटिंग, ठीक है. तो ये वाली जो कोटिंग हो गई पर्पल कलर वाली, दिस इज योर जिलेटिनस कोटिंग एंड इज मेड अप ऑफ एल्जिन से बना होता है, ठीक है. हमारी एल्जिन से बनी होती है. और इनसाइड वाली किससे बनी होती है? इनसाइड वाली बनी होती है हमारी सेल्यूलोज से. तो एक और डिफरेंस आ गया, क्या? क्लोरोफाइसी में जो आउटर कवरिंग थी वो किससे बनी हुई थी? पेक्टोज से बनी हुई थी. किससे बनी हुई थी? पेक्टोज से बनी हुई थी. बट हेयर इट इज़ मेड अप ऑफ एल्जिन, ठीक है. आगे बात करते हैं. तो आगे जब हम बोलते हैं, देन दे टेल यू दैट द प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स, in addition to plastids, a centrally located vacuole and a nucleus.
ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऑफ दिस पियोफाइसी दैट इज़ द ब्राउन एल्गी, सो उसमें प्लास्टिड्स के अलावा भी दो चीज़ होती हैं, एंड दैट आर योर वैक्यूल्स एंड द न्यूक्लियस। तो वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट बॉडी. When we talk about the plant body, then it is usually attached to the substratum by a hold fast. अब हमें इसमें hold fast भी दिख गया. ठीक है। जब हम क्लोरोफाइसी की बात कर रहे थे तो अभी वहाँ पे सिर्फ थैलस लाइक था, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक होल्ड फास्ट दिखा जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेटम, मतलब जहाँ जिस पर से अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच किसके थ्रू होती हैं? वो होल्ड फास्ट के थ्रू होती हैं. एंड हैज़ ए स्टॉक प्रेजेंट होता है, एंड दिस टाइप, एक टाइप प्रेजेंट होता है, एंड द लीफ लाई फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन. तब इसमें फ्रॉन, स्टॉक, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट इज प्रेजेंट, एंड दे हैड यूज द टर्म लीफ लाइक, दैट नॉट यूज द वर्ड लीफ. तो ये जो फ्रॉन्ड है ये हमारी कोई लीफ नहीं है, लेकिन एक लीफ लाइक ऑर्गन है. लीफ की तरह एक ऑर्गन है, लेकिन ये हमारा लीफ नहीं है. इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लीफ. देन इट सेज दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, दैट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. When we talk about the asexual reproduction, so in most of the brown algae, it is by biflagellated zoospores. Biflagellated zoospores मतलब the zoospores containing two flagellas. ठीक है। तो zoospores के थ्रू हुआ, बट वो भी कौन से वाले? बाइफ्लैजिलेटेड. ठीक है, जिसमें दो फ्लैजिलास प्रेजेंट हों. दैट आर pear shaped and have two unequal laterally arranged flagella. अब इन्होंने जो zoospores था, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स जो हमारे थे, उनको भी डिफाइन किया है कि किस टाइप के बाइफ्लैजिलेटेड से. सो इट वाज अनइक्वली अरेंज्ड. तो पहले तो था कि पियर शेप्ड थे. ठीक, पियर शेप्ड थे और अनइक्वल थे और लैटरली अरेंज थे. ठीक है। तो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला थे दैट वर अनइक्वल इन साइज. आगे बढ़ते हैं. तो आगे बात करते हैं ये दैट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब ए सेक्शुअल हो गया, वेजिटेटिव हो गया, अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सो इट टेक्स प्लेस बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. आई थिंक यू वुड बी प्रिटी श्योर अबाउट दिस term isogamous, anisogamous and the term oogamous very nicely. So I'm not going to explain it again. So इसके थ्रू, इन 3 मेथड्स के थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि फियोफाइसी में जो यूनियन ऑफ गैमेट्स होगा, बिकॉज दे आर मेराइन हैबिट, प्राइमरली मेराइन हैबिटेट है उनका, दे आर मोस्टली लिविंग इन द मेराइन वाटर्स. सो क्या होगा, जो उनके जो गैमेट्स होंगे, एंड दे आर मोस्टली, ये जो एल्गी है वो हमारा प्रिमिटिव क्लास है. मैंने फर्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो ये एल्गी है ये प्लांट किंगडम का प्रिमिटिव डिवीजन है. तो जब प्रिमिटिव है तो सब कुछ वाटर में ही बेसिकली हमें फाइंड आउट होगा. तो जो इसमें गैमेट्स फ्यूजन होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा, दैट विल ऑल्सो अकर इनटू द वाटर बॉडीज, राइट. तो वाटर के अंदर होगा गैमेटिक फ्यूजन, और विद इन द oogoneum दैट इज oogamous. जब oogamous स्पीसीज की बात करते हैं तो वो oogoneum में होगा. क्यों? क्योंकि oogamous रिप्रोडक्शन कौन सा था जिसमें एक बड़ा गैमेट था, एक छोटा गैमेट था. बड़ा वाला नॉन मोटाइल था, छोटा वाला मोटाइल था. जो बड़ा वाला था वो हमारा फीमेल था, और जो छोटा वाला था वो हमारा मेल था. तो उसके थ्रू हमें क्या पता चला? तो oogoneum के अंदर ये हमारा होगा. फिर आगे बोलता है कि द गैमेट्स आर
पायरिफॉर्म दैट इज pear shaped in structure. जो gametes होते हैं of Phaeophyce, they are pyriform that is pear shaped in structure and bear two laterally attached flagella. तो इनका स्ट्रक्चर भी zoospores की तरह ही है. It is also pear shaped and has laterally arranged, laterally attached flagella which are 2 in number. ठीक है, तो ये इनके गैमेट के स्ट्रक्चर हो गया. फिर इसके बाद इन्होंने बोला है दे हैड गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ इट दैट इंक्लूड्स योर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, sargassum and fucus. So these examples are needed to be learnt up, right? So I hope you would have understood this Phaeophyce, and if you haven't, so please do comment me and let me know so that I could make another video in a more detailed way so that you could understand, and also containing some pictures so that you may understand in more better way, right? So now let's move on to Rhodophyce. Yeah, and yeah, also do let me know that any query that you might have, right? So let's start the rest part of the video, that is Rhodophyce. तो Rhodophyce की जब हम बात करते हैं तो Rhodophyce को हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं. तो Rhodophyce को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अब इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे. उनकी डोमिनेंस के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, वो आगे की वीडियो में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. So it says that the member of Rhodophyce are commonly called as red algae because of the predominance of the red pigment. Red pigment, और वो red pigment कौन सा है? R phycoerythrin. ये R phycoerythrin जो पिगमेंट है, इसकी डोमिनेंस की वजह से they appears to be red in color and are termed as red algae. Got it? Then we talk about that majority of red algae are marine with greater concentration. तो क्या है कि जो हमारी रेड एल्गी होती है they are mostly marine in nature. That means they had given you the term majority. That means some are also there which are non-marine in nature. But जब हम लोग पूरे ग्रुप की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज मेराइन इन नेचर, राइट? एंड विथ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज. एक चीज़ और कि जो पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रेड एल्गी की वो मेराइन है. सेकेंड ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट देयर greater concentration is found, मतलब the majority is found in the warmer areas, right? उसके बाद बोलते हैं that they occur in both well lighted region close to the surface of the water and also at the great depths in oceans where relatively little light penetrates. मतलब तो इसमें देखो, इसमें कुछ डाइवर्सिटी और देखिए that was what, that is कि रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसी जगह पे भी अकर कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है, जैसे कि हमारा वाटर की सरफेस, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली सनलाइट फॉल हो रही है, हमें लाइट मिल रही है. उस रोडोफाइसी, उस प्लांट को, उस एल्गी को लाइट मिल रही है कंटिन्यूसली. क्योंकि अगर सरफेस होगा वाटर का, अगर वाटर की सरफेस पर कोई भी एल्गी प्रेजेंट होगी तो उसको सनलाइट मिलेगी. अभी आप टेरेस पर जाओ और टेरेस पे आपने कोई चीज़ रख दी, ठीक है, इधर उधर कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ आपका टेरेस है, आपने वहाँ पे एक चीज़ रख दी, अब उसको लाइट ज़्यादा मिलेगी. और एक आपने बेसमेंट में आ गए और बेसमेंट में वही उसी का जो दूसरा पार्ट था वो आपने उस जगह पे रखा. अब बताओ बेसमेंट में लाइट मिलेगी या फिर
जो टेरेस पे रखा है, तो जो टेरेस पे रखा है उसको ऑब्वियसली लाइट मिलेगी। सिमिलरली जो सरफेस ऑफ द वाटर है वहाँ पे हमारी ज़्यादा लाइट फॉल होगी, तो उस एल्गी को हमारी ज़्यादा लाइट मिलेगी। तो ये जो रोडोफाइसी की मेंबर्स होते हैं, जितनी भी एल्गी रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, दे आर फाउंड बोथ ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन। डेप्थ्स में क्या होता है, ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं होती, ज़्यादा लाइट अंदर नहीं जाती है, तो वहाँ पे लाइट की कमी हो गई, इवन दो दे आर फाउंड इन बोथ द प्लेसेस। तो मतलब यहाँ पे लाइट के बेसिस पे भी बहुत सारा वेरिएशन है कि जो एल्गी है दैट में लिव इवन ऑन द सरफेस ऑल्सो एंड इन टू द ग्रेट डेप्थ्स ऑफ द ओशंस ऑल्सो, राइट। फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, सो दे से क्या बोलते हैं ये, द रेड एल्गी, द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर की बात आ गई। जो रेड एल्गी की जो रेड थैलाई होती है, जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑफ एल्गी, उसमें जो ऑफ रेड एल्गी की तो वो जो थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, सो दैट इज मल्टी सेल्यूलर इन नेचर, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट इज़ मेड अप ऑफ numbers of cell. Then some of them have complex body organization. अब देखो हमने बात करी थी प्रिमिटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते जा रहे हैं तो क्लास में ही मतलब डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि अब कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर आने लगा आगे। Then this says that the food is stored as Floridian starch. तो फ्लोरोटिन स्टार्च की फॉर्म में हमारा फूड स्टोर होता है, राइट। तो हम बात कर रहे थे फियोफाइसी की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर हो रहे थे, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। तो लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये वर्ड याद रखना, फ्लोरोटिन स्टार्च याद रखना, ये पिगमेंट्स, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये सब इम्पॉर्टेंट है not only from your board exam, not only from your internal exam but also the external exam। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ गोइंग टू कम, दिस इज़ गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ MCQs, तो इसको प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। तो वो हमारा क्या था कि जब फूड स्टोर्ड है, इट इज़ स्टोर्ड इन द form of Floridian starch, then which is very similar to amylopectin and glycogen in structure। तो ये जो हमारा फ्लोरोटिन स्टार्च है, ये जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन होता है उसके स्ट्रक्चर के बहुत सिमिलर है। सो जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे बोलता है कि द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो तीनों एल्गी जो हैं दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यह तो याद ही रहेगा। देन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, राइट। तो जब हम बात कर रहे थे फियोफाइसी की तो वहाँ पे बाइफेजिलेटेड स्पोर्स थे। जब हम बात करें रोडोफाइसी की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इज कैरीड आउट बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारा नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर ये बात बोलते हैं दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप का होता है। अब आइसोगैमस एंड आइसोगैमस नहीं रहा, सिर्फ oogamous रहा, क्योंकि आइसोगैमस एंड आइसोगैमस में मूवमेंट होता है। अब oogamous टाइप का ये रिप्रोडक्शन हुआ एंड इज accompanied by complex post fertilization development। मतलब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जब जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस,
उन सारे इवेंट्स को हम लोग टर्म करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले, इसी तरह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो जितने भी बाद के प्रोसेस हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं इन केस ऑफ रोडोफाइसिन। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी देन द फियोफाइसी, तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। जब हम आगे ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे वहाँ पे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ऑफ रोडोफाइसी दैट इंक्लूड्स पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया एंड गैलिडियम। और ग्लेसिलेरिया एंड गैलिडियम मैंने सेकेंड पार्ट वीडियो में बताया था कि ये दोनों किस में यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, अगर एक सब्सटेंस होता है, अगर ये हमें गैलिडियम और ग्लेसिलेरिया से मिलता है एंड दिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स एंड जेलीज, राइट। जेलीज और आइसक्रीम्स बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। जब हम बात करते हैं तो एक ये टेबल दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। दिस इज़ योर एनसीईआरटी बुक फ्रॉम विच आई एम टीचिंग। तो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दिस ऑल्सो। तो इसके थ्रू आप जो हो जितनी भी तीनों क्लासेस हैं उसकी पूरा समरी दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी आपको बाकी वो पैरास जो दिए हैं उसमें से पढ़ना है क्योंकि हर लाइन इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लांट किंगडम जिसका नाम है, राइट। तो आज हमारी इस पार्ट में हमारी एल्गी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स, then we will be talking about the rest, that is pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and at last we will be talking about the alternation of generation and finally your plant kingdom will be completed. So अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो टेबल दी है that tells you the division of algae and their main characteristics। तो इसमें मेन ही दी हैं, बाकी अभी बची हुई हैं तो उन पैरास में आप देख लीजिएगा। सो इट सेज दैट क्लोरोफाइसी जो हमारी है उसको हमारा कॉमन नेम क्या दिया गया है, ग्रीन एल्गे, बिकॉज इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफाइसी में देखो ऐसे याद करो 1 2 3, ठीक है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ए सब में होगा, क्लोरोफिल पी सी टी, इस तरह से याद कर लो तो आपको याद रहेगा कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी में हमारा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है, फियोफाइसी में हमारा क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल डी है। तो जब हम बात करते हैं अबाउट क्लोरोफाइसी, सो इट इज़ द ग्रीन एल्गी, it is having chlorophyll A and chlorophyll B. Then food stored in a form of a starch. Cell wall is made up of cellulose. Flagella number and position of insertion, तो इसमें 2 से 8 होते हैं। दे आर इक्वल एंड प्रेजेंट एट द एपिकल पोजिशन, मतलब टिप वाले पोजिशन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। टिप पे जैसे ये है आप, तो ये जो होता है रीजन, ये टिप वाला एरिया, इसको हम लोग टर्म करते हैं एपिकल। इस एरिया को टर्म करते हैं इस एपिकल, ये एपिकल रीजन होता है। तो एपिकल रीजन पे प्रेजेंट होता है 2 to 8 फ्लैजिलास होते हैं, दे आर इक्वल इन साइज। हैबिटेट्स क्या है, इट इज़ फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। तो ये सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द फियोफाइसी, it is also known as brown algae. It is containing chlorophyll A and chlorophyll C and the fucoxanthin pigment. इसके साथ साथ इसमें क्या था, कैरोटेनॉइड्स भी थे हमारे और ज़ेंथोफिल्स भी थे, राइट। अभी तो हमने पढ़ा था, तो कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स भी इसमें थे। और जो यहाँ पे तो मेन चीज़ लिखी है ना, तो मेन पिगमेंट्स कौन से हो गए, फ्यूकोजेंथिन इसमें हो गया और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी हो गया। स्टोर्ड फूड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और एल्जिन से बनी होती है, जो जिलेटिनस कवरिंग होती है ऑन द सेल्यूलोसिक वॉल, ठीक है।
फिर जब हम बात करते हैं फ्लैजिला की, तो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, एंड दे आर 2 इन नंबर, बाइफ्लैजिलेटेड थे। जब हम बात करते हैं हैबिटेट की, देन दे आर फ्रेश वाटर में बहुत रेयर केस में फाइंड होती हैं हमारी ये, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में मोस्टली फाइंड होती हैं। When we talk about the rhodophyceae, it is also known as red algae. The pigments that is present, the major pigments that are present are chlorophyll A and chlorophyll D. तो इसमें A भी, इसमें AC और इसमें AD प्रेजेंट है, और प्लस आर फ्यूको एरेथ्रिन जो था वो हमें रेड पिगमेंट दे रहा था इस क्लास का, सॉरी इस डिवीजन का, सॉरी यहाँ पहले मैंने सही बोला था, इस क्लास का क्या था, इस क्लास को हम लोगों ने रेड एल्गी कहा था। तो वो किस वजह से कहा था, क्योंकि उसमें पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा प्रेजेंट था। आर फाइकोएरिथ्रिन जो था वो रेड कलर दे रहा था, तो यहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन मेजर पिगमेंट है, और क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी भी मेजर पिगमेंट में आता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरेटिन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के तरह इसका भी स्ट्रक्चर होता है। मतलब फ्लोरेटिन स्टार्च का स्ट्रक्चर माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से रिलेटेड होता है, तरह होता है ऑलमोस्ट। तो जब सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल इसमें सेल्यूलोज की प्रेजेंट होती है, पैक्टिन की बनी होती है, और पॉलीसल्फेट एस्टर, सेल्यूलोज और पैक्टिन की इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर आगे बात करते हैं फ्लैजिला की, तो कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसमें, इस पर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों ही नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। जब नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें फ्लैजिला कैसे ज़रूरत होगा, क्योंकि मेन फ्लैजिला का मेन काम जो होता है दैट इज़ फॉर मूवमेंट। तो जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो फ्लैजिला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड हैज़ देयर इज़ नो फ्लैजिला प्रेजेंट। तो फ्लैजिला एब्सेंट रहता है। और जो हैबिटेट इसका होता है वो होता है फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, सब मतलब थोड़े से स्पीशीज पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, otherwise it is brackish water and salt water which is found in the moist conditions. So this is what is your rhodophyceae. So finally our algae is completed. So in the next video we shall talk about the bryophytes, right? अब bryophytes बहुत beautiful kingdom है, सॉरी किंगडम कह रही हूँ, ब्रायोफाइट्स बहुत प्यारा डिवीज़न है ऑफ किंगडम प्लांट की। इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये रहते तो लैंड पे हैं लेकिन मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। सो दे रिक्वायर द वाटर for completing their life cycle and hence are termed as amphibians of the plant kingdom. तो अभी हम जब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट की, उसके बाद फिर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की। सो टिल देन थैंक यू ऑल and hope you all enjoyed the video. So don't forget to like, share and subscribe, and also अगर कोई query है तो please write down into the comment section, right?